Good morning, everyone. We are waiting for all the participants or the maximum participants to join for today's webinar. Then we shall be starting soon with our webinar. So kindly have some patience. Thank you. Good morning, everyone. About 100 participants have already joined. So we are waiting for rest of the participants to join and we shall be starting with our webinar soon. Yeah, good morning, everyone.
Good morning, everyone. Myself, Engineer Suraj, and I'm serving as the head of Department of Computer Science and Engineering at Golden College of Engineering and Technology, Gurdaspur. I'm highly obliged and thankful to the worthy management of Golden Group of Institutions, Gurdaspur, especially Dr. Mohit Mahajan, Chairman ji, Golden Group of Institutions, Engineer Raghav Mahajan, Managing Director, and worthy principals. Good morning to all. Golden Group of Institutions Gurdaspur has been serving the society since 1960, and this serving has been accomplished in numerous ways, including free handicap camps for limb donation, various and number of blood donation camps, various places ration distribution, and the most important one, free education to the poor and needy people, and many more. Golden Group of Institution is comprised of several sub-institutions that includes Golden College of Engineering and Technology, Golden Institute of Management and Technology, Golden Polytechnic College, Golden College of Education, Golden Senior Secondary School, and Shri Nangli Academic Public School. From the very first day of its establishment, Golden Group has always maintained its attribute of providing quality education to the society and kept the motto, "जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही भी हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं." जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं. And today, I'm highly humbled to welcome one of the most dignified and state level personality of our country, Shri Desraj Sharma ji, who is acting as the key spokesperson for today's webinar. He is also acting as the national convener of Shiksha Sanskriti Utthan Nyas New Delhi. Along with that, he is also acting as the General Secretary Vidya Bharati North Zone. Now, specifically enlightening some of his personality traits and talking about his achievements, he has remained the member of Academic Council of Punjab School Education Board Mohali from 2011 to 2018. Along with that, he has given more than 350 lectures in different seminars and conferences throughout the country. He has also remained as the panelist in Doordarshan Jalandhar, and along with that, he has been awarded for transforming in education by Shri Pranav Mukherjee, Honorable President of our country. Now, I would like to hand over the control, and it's a highly privileged for Golden Group of Institutions that such a dignified personality is acting as the key spokesperson for today's webinar. And the title of today's webinar is National Education Policy and its Implementation, which is the current hot topic of today's society, especially all the institutes, all the educational platforms. Now, I would like to hand over the control to Engineer Raghav Mahajan, the Managing Director of Golden Group of Institutions, to welcome our key spokesperson for today's webinar. Thank you. Am I audible? Raghav? Yes, sir, you are completely audible, sir. Thank you. Okay. Thank you, Surajji. Respected Chairman, sir, principals, Shri Deshraj Sharma ji, teachers, and all my dear participants, a very good morning to all of you. आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे बीच माननीय श्री देशराज शर्मा जी हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताएंगे. So on behalf of whole Golden Group of Institutions, I welcome Shri Deshraj Sharma ji today, and I hope all the participants will be listening to this webinar very carefully and maintains proper discipline. Thank you so much. Now, I would like to request our key spokesperson, Shri Desraj Sharma ji. Can you hear me, sir? आपको आवाज आ रही है? Can you hear me, sir? हेलो जी. जी सर, आपकी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है सर. गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार जी. जी सर. आज के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपलक्ष्य में रखे इस वेबिनार के अंदर
शिक्षा के लिए एक तड़प और एक विजन, और उस विजन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित जीवन जीने वाले गोल्डन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित जी, राघव जी और प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। 2-3 बातें मैं इसके अंदर हम सबके सामने विचार करने के लिए रखूंगा, इसलिए इसको भाषण की प्रक्रिया में नहीं, समझने की प्रक्रिया में आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा। इस चर्चा के अंदर हम देखते हैं कि जब कभी भी किसी भी देश की, किसी भी समाज की जो उन्नति है, जो जीवन जीने की कला है, वह उसे शिक्षा के द्वारा प्राप्त। तो वर्तमान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यदि हम देखेंगे तो 2-3 बातें मुख्य रूप से मैं आपके सामने रखना चाहूँ। We all are know that education is a fundamental for achieving full human potentiality, developing on the equitable and justice society, and promoting national development. We also know and see that in the present scenario, world is undergoing rapid changes in the knowledge and skill. So it can be judged, it can be seen that the various dramatic scientific and technological advances are there, such as the rise of big data, machine learning, artificial intelligence. So due to this, in our country, we are facing so many problems like that. What will happen with the unskilled worker and jobs? यानी 3-4 बातों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो ये जो पूरी दुनिया का एक सिनेरियो चेंज हुआ, इस चेंजिंग सिनेरियो के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग जो अनस्किल्ड था, वो सर्टिफिकेट डिग्री होल्डर बनकर बेरोजगारों की पंक्ति में खड़ा शुरू होना हो गया। सर्टिफिकेट है, डिग्रीज बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बेरोजगार है, वो नौकर बनने के लिए, नौकरी के लिए तड़पता है, छटपटाता है। लेकिन आज नौकरी देने वाले उसको पूछते हैं तेरे को आता क्या है, और वो बेचारा 90% अंकों के साथ, 95% सर्टिफिकेटों की एक सुंदर मालिका के साथ, अनेकों डिग्रीज के साथ मायूस होकर एक किनारे खड़ा हो जाता है। एंड इन अनदर हैंड, दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि so many needs and necessities for a skilled workforce, particularly involving the mathematics, computer science, data science, in conjunction with the multidisciplinary abilities across the science, social science, humanity, will be increasingly in the greater demand. अब 2 एरिया बन गए। एक ऐसा एरिया बन गया जिसके अंदर खूब पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेरोजगार हो गए, और एक देश की आवश्यकता बनी दुनिया के साथ मिलने की, उन कोर्सेज के अंदर लोग मिल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर
शिक्षा के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से 34 वर्षों से इस विषय पर विचार नहीं किया गया। 1986 के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर, जिसका रिव्यू 1992 में हुआ, जिसका करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में हुआ, वो समाज के रीति रिवाज बदल गए, काम करने के तरीके बदल गए, सोचने का सिस्टम चेंज हो गया, देश की आवश्यकताएं बदल गई, लेकिन शिक्षा वही चल रही थी। ऐसी परिस्थिति में हम ये देखते हैं कि वो शिक्षा बेमानी हो जाती है, वो शिक्षा बेकार हो जाती है, और हम सभी उसी शिक्षा को लेकर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब इंजीनियरिंग कॉलेज खाली होने लगे, बहुत सारे देश के अंदर ऐसे कॉलेजेस बन गए। अब दोष कॉलेज चलाने वालों का नहीं था, एक सिस्टम ऐसा आ गया जिस सिस्टम के कारण से पढ़ने वालों को कुछ भी भविष्य अपना नजर नहीं आ रहा, एक लिमिटेड स्कोप बन गया। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, दुनिया की सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, विश्व को ध्यान में रखते हुए, जो तीव्रता से परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, तो फिर यह जरूरी है कि जो कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है तो वो उसे सीखें और कंटिन्यूसली उसको सीखते रहें। ऐसी व्यवस्था का देना जरूरी था। इसी का नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। अब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, मैं फैकल्टी मेंबर से और स्टूडेंट से निवेदन करना चाहता हूं, इसको भाषण के रूप में हम ना लें, इसको समझने के रूप में लें, इसको अपनाने के रूप में लें, और इस पर काम क्या करना है इन महीनों के अंदर, इस पर विचार करने के मैंने राघव जी से और मोहित जी से निवेदन किया था। एक आप बहुत सुंदर और बढ़िया काम करने जा रहे हैं, जो देश की आवश्यकता है, जो इस पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने इस शिक्षा नीति के माध्यम से अपने जीवन को आगे गढ़ना है, और जिन इंस्टीट्यूशंस ने इस सिस्टम को लागू करना है, यदि हम उनके बीच में इस विषय को नहीं रखेंगे तो कई वर्ष जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, कुठारी कमीशन 1964, अनेकों वर्षों के बनने के उपरांत भी लागू देश में नहीं हो सके पूरी तरह से। यही असर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का होगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं गोल्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को, कि जिन्होंने आज की आवश्यकता को समझते हुए ऐसे वेबिनार का आयोजन किया। इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। जब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विचार करेंगे तो ये बड़ा छोटा सा डॉक्यूमेंट है, लेकिन कई बार पढ़ने के बाद शायद कुछ समझ आता है। कुल मिलाकर इसमें 4 एरियाज हैं, 25 चैप्टर हैं केवल। 25 चैप्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, एक स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, प्रोफेशनल एंड अदर एजुकेशन है, और एक पोर्शन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। सो देयर आर 4 पार्ट of the whole system and document regarding the education policy. इसमें कुल चैप्टर 25 बनते हैं। पहले 8 चैप्टर के अंदर स्कूल एजुकेशन की बात की गई है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से 8। चैप्टर नंबर 9 से 19 तक, 9 to 19,
इसमें हायर एजुकेशन की बात कही गई है। चैप्टर नंबर 20 to 24 इसमें प्रोफेशनल एजुकेशन की बात की है, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात की। कुल मिलाकर 286 पॉइंट हैं केवल और केवल, को बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट। हिंदी के वर्जन में 106 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, इंग्लिश के वर्जन में 60 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, और इसका एक ब्रांड स्वरूप लगभग 600 पेजेस के अंदर है। हम इसमें से कुछ एक बातों की आज चर्चा करेंगे, क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी की एक विशेषता है, ये पहली शिक्षा नीति है जिसके अंदर समग्रता से बात, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है। यानी 0 वर्ष गर्भाधान से लेकर पीजी तक एक सिस्टम इकट्ठा किया है। इसमें अलग अलग पार्ट्स पर विचार नहीं किया गया है, तो इसलिए ये शिक्षा नीति की बहुत बड़ी विशेषता है कि 0 to 24 ईयर की जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे ऋषि मुनियों ने 25 वर्ष तक जिस ब्रह्मचार्य की कल्पना की है, जिसके अंदर विद्या अध्ययन के 25 वर्ष बताए हैं, इसकी समग्रता को इस शिक्षा नीति में रखा गया है। दूसरी बात, तो इसलिए मैंने निवेदन किया था कि एक वेबिनार अगर हम समग्र शिक्षा पर करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच पर करते हैं, तो उसमें कुछ एक मोटी मोटी बातें हम सबके ध्यान में आएंगी, लेकिन उसके बाद इसकी एक वेबिनार सीरीज बन जाती है, और सीरीज के अंदर स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एरिया के साथ साथ फिर इसकी अलग स्टेजेस हैं। जैसे स्कूल एजुकेशन आएगी तो उसकी अलग अलग स्टेजेस बनेंगी, उसका एग्जामिनेशन सिस्टम लग आएगा, उसका स्ट्रक्चर लग आएगा। तो आज हम इसकी मोटी मोटी बातें इस वेबिनार में करेंगे, और यदि संभव होगा तो आने वाले दिनों में सीरीज ऑफ वेबिनार के माध्यम से फिर इसके अलग अलग पार्ट्स पर विचार करके हम अपनी वर्कशॉप लगाकर, वेबिनार करके इन सारी बातों को इसके आगे ले जाएंगे। तो इस दृष्टि से जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं इसके मोटे मोटे बिंदु समग्रता की दृष्टि से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। पहले इसके अंदर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जिसमें उसने कहा है recognition, identifying and fostering the unique capability of each student by sensitization teachers as well as parents. This is a very important clause. Who is the stakeholder? Teacher, students and parents. They are the stakeholders. इनको इसका लाभ मिलना है, तो इन तीनों के पास शिक्षा नीति की जानकारी का होना लागू करने से पहले जरूरी है। यदि इन तीन फैकल्टी के अंदर, तीन एजेंसीज के अंदर, टीचर, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इसके अंदर शिक्षा नीति का अच्छा अध्ययन होता है, तो वो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को, बच्चा स्वयं अपना निर्णय लेने पर, और टीचर्स को पढ़ाने में बड़ी सरलता बन जाएगी। यदि इन्हें ये जानकारी नहीं मिलेगी और शिक्षा नीति की सारी क्लॉजेस लागू हो जाती हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयों से रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट बन नहीं पाएगा। इसलिए भी मैं गोल्डन ग्रुप ऑफ एजुकेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे समसामयिक विषय के ऊपर आपने चिंता की। सही मायने में एक अच्छे एजुकेशनिस्ट की भूमिका में आपने अपने को प्रस्तुत किया है। तो मैं इसकी 4-5 बातें, कि जैसे सबसे पहले हम स्कूल एजुकेशन, हाँ, स्कूल एजुकेशन से पहले मैं एक और बात कहता हूँ। इस सारी शिक्षा नीति में कहीं भी पढ़ने और पढ़ाने की बात नहीं की, इसमें केवल और केवल एक ही बात कही है, सीखना, सिखाना। ये जो सीखने की बात कही गई है, इस सीखने के अंदर यानी कि लर्निंग
लर्निंग की ही बात कही गई है, तो इस लर्निंग के द्वारा क्या क्या सिस्टम लागू होगा, ये शिक्षा नीति का आधार है। दूसरी विशेषता भी मैं इसकी बताना चाहूंगा, ये पहली शिक्षा नीति ऐसी है, पहली शिक्षा नीति आजाद भारत की, जो भारत केंद्रित है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एजुकेशन इज भारत, यानी इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि इसके सोचने का कारण, उसके पीछे एक कारण भी है। ये सब क्यों है, इसका एक कारण है। कारण ये है कि किसी भी देश की, किसी भी समाज की, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है, उसकी एक प्रकृति होती है। गुरदासपुर के लोगों की प्रकृति और मालवा के लोगों की प्रकृति, यानी कि माझा और मालवा के लोगों की प्रकृति में अंतर है। पंजाब के लोगों की और मुंबई के लोगों की प्रकृति में अंतर है। ये जो प्रकृति की अंतर है, शिक्षा प्रकृति के अनुसार दी जाती है। जैसे किसी को सेहत अपनी अच्छी रखनी है, तो आयुर्वेद के मुताबिक वात, पित्त और कफ के आधार पर उसकी प्रकृति शरीर की बनती है, और यदि तीनों का बैलेंस ठीक है तो शरीर स्वस्थ और ठीक रहता है। ऐसे ही देश की भी एक प्रकृति, ऐसे ही देश की एक संस्कृति होती है। यूरोप के अंदर अमेरिका की संस्कृति और भारत की संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर है। उसके वायुमंडल में अंतर है, उसके मौसम में अंतर है। जहां 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले स्थान है, वहीं हम देखते हैं कि ये सारे के सारे स्थान भारत के अंदर तो 6 ऋतुएं हैं। ये इसकी संस्कृति बना, इसकी सभ्यता है, इसके पूर्वजों की रिसर्च है, इनोवेशन है, वो उस समय कालखंड और आवश्यकताओं के अनुसार होती है। इस दृष्टि से भी हम देखते हैं तो देश में एक अंतर दिखाई देता है। चौथी बात, जहां प्रकृति अलग है, जहां संस्कृति अलग है, भाई और बहनों, वहां प्रत्येक देश की आवश्यकताएं भी अलग होती हैं, और उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश की शिक्षा नीति होती है। भारत को 20 वर्षों के बाद कैसे व्यक्ति चाहिए जो दुनिया के अंदर आगे बढ़ सके, इस विषय को कंपीट करते हुए नंबर 1 पर आ सके, तो वो भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। तो शिक्षा की जो नीति है, इस शिक्षा नीति में इस पर संपूर्ण विचार किया गया है, और केवल विचार नहीं किया गया है, इस विचार के साथ ये कहा गया है कि इस देश के ऋषि मुनियों, पूर्वजों ने जो वैज्ञानिक सर्च की है, जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों के आधार पर एक युग में ये देश विश्व गुरु रहा है। और जब ये विश्व गुरु रहा है तो दुनिया में सुख था, शांति थी। वह जो रिसर्च हमारी थी, उसको आधार बनाकर 21वीं शताब्दी की शिक्षा के लिए क्या चाहिए, इन दोनों बातों का मेल इस शिक्षा नीति। तो जब इस बात को हम ध्यान में रखेंगे तो शिक्षा नीति के अंदर इस बात को, तो ये अगली विशेषता इसकी आई, तो इस विशेषता के अंदर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति बनी है। आज जो हम विचार कर रहे हैं, मैंने कुछ एक विशेषताएं जो इसकी भूमिका में है, जिसको समझे बिना शिक्षा नीति को आगे समझ नहीं सकते, उसको लागू सही ढंग से कर नहीं सकते। तो मेरा अनुरोध है कि ये जो मूल भावना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, इसको जब हम जानेंगे और समझेंगे तो उसके उपरांत अगला पड़ाव आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या।
तो जब इस पर विचार करेंगे तो उसमें कुछ इतने बड़े परिवर्तन हैं, उन कुछ परिवर्तनों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। हो सकता आप में से बहुत सारे ने उनको पढ़ लिया होगा, तो अगर पढ़ लिया होगा तो भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर इस पर हम जरूर केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि इस पर अध्ययन करेंगे, तो उस अध्ययन के नाते भी अपने को विचार कर, तो उसमें जो बहुत बड़ा बदलाव है जिसके लिए हमें तैयारी कर, उसमें पहला बदलाव है वो मैं स्कूल एजुकेशन से शुरू करता हूं और हम प्रोफेशनल एजुकेशन तक पहुंचे। स्कूल एजुकेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर था वो टोटली एंड इंटायरली हैज बीन चेंज्ड। क्या चेंज आई है उसमें? उसके अंदर चेंज आई कि जो 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वह अब समाप्त हो गया, और वो 10+2 समाप्त होने के साथ में अब क्या बन गया? वो बन गया 5+3+3+4। अब ये स्ट्रक्चर आ गया। इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत सॉरी, इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत बहुत बड़ा बदलाव है। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ये 4 पार्ट स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर के बने। अब पहला 5 इसके 2 भाग बन गए, 0 to 6 and 7, 6, 7 and 8, यानी गर्भाधान से लेकर 3 वर्ष तक एक भाग, 3, 4 और 5 3 वर्ष की शिक्षा का दूसरा भाग, और कक्षा 1 और कक्षा 2 इसका एक अलग भाग। अब इसमें 0 से 3 इनफॉर्मल एजुकेशन, और 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के स्ट्रक्चर में ये इसका फॉर्मल एजुकेशन का भाग बन गया। जो पहले केवल 6 वर्ष से था, अब वो 3 वर्ष का भाग फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आ गया। अब इस फॉर्मल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर बना वो बड़ा समझने वाली बात है। वो ये समझने वाले है कि 8 वर्ष के आयु के बच्चे को जो पहले केवल 6 वर्ष की उम्र में लिया जाता था, जिसे अब 3 वर्ष के अंदर एंटर कर लिया, जो पहले केवल प्राइवेट स्कूल करते थे अब वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी आ जाए। अब जो इस तरह से आएंगे तो आप देखेंगे कि इसको फाउंडेशन स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज का नाम दिया गया है। अब फाउंडेशन स्टेज में जो 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे हैं, यानी कि इसका पहला भाग 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को किताब नहीं लगेगी, उनको पढ़ाने की जो ढंग है वो एक्टिविटी बेस्ड होगा। एक्टिविटी बेस्ड के साथ में कहानियों के माध्यम से होगा, गीत के माध्यम से होगा, और ये सारा का सारा सिस्टम केवल गीत और कहानियों के माध्यम से नहीं बल्कि नाटक, कठपुतली, संगीत, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके कर्मेंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों का विकास करना है। हम जानते हैं कि हमें 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियां, और उसमें क्या करवाना है? उसका ज्ञान, उसके ज्ञान में केवल 3 बातें करवानी, सॉरी 2 बातें करवानी है, भाषा और गणित। भाषा और गणित पढ़ाना नहीं है, इसके माध्यम से उसको सिखाना है, और इस स्टेज को उन्हें फाउंडेशन स्टेज क्या। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है उसको समझना जरूरी। न्यूरो साइंस कहती है 8 वर्ष की उम्र तक बच्चे के 85% बुद्धि का विकास हो जाता है। अनुभव के आधार पर सारी आयु में केवल और केवल 15% बुद्धि का विकास उसके आगे होता है। 5 करोड़ से ज्यादा बच्चा इस शिक्षा से बाहर था
तो जिनका इतना बड़ा कार्य है जिस शिक्षा का, अब उसको फॉर्मल शिक्षा में शिक्षा नीति में लिया गया। इसी तरह से कक्षा 1 और 2 में कहा गया कि इसमें गणित, भाषा और अन्य विषय, उन विषयों को पढ़ने के लिए तैयार करने हैं बच्चों को, तो यहाँ पर भी उसको बड़े मनोरंजन ढंग से, जॉयफुल वे से, थ्रू एक्टिविटीज इस सारे काम को करना है, ताकि वो कक्षा 3 में जाकर पढ़ने के योग्य, पढ़ने के लिए तैयार हो सके, जहां सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो। तो ये पहला पढ़ा, इसको फाउंडेशन। दूसरी स्टेज में वह है प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज के अंदर कक्षा 3, 4 और 5 केवल 3 कक्षा आई, लेकिन वहां पर भी बच्चा पुस्तक के बोझों से छुटकारा पाकर उसको सर्च बेस्ड, उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से, उसको ग्रुप डिस्कशन से, उसको कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनैलिटी उसकी डेवलप करते हुए उसको ग्रूमिंग करना, ये सारी पेंटिंग, चित्रकला, कला, समस्या सुलझाने के लिए कुछ कार्यक्रम, तो छोटी छोटी बातों को, अक्षर, भाषा, संख्या, गणित, रंग, आकार, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर बात कही गई है। तो इस दृष्टि से एक तो ये, लेकिन इसके साथ में और क्या किया, इसके साथ में एक और बहुत बड़ी बात कि हम सब जानते हैं कि मां के गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है, यदि हम कई एग्जाम्पल देखते हैं, अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया, चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना, उसके अंदर कैसे जाना है, लेकिन जब मां को नींद आ गई तो वो निकल नहीं पाए। तो ये जो 0 से 3 वर्ष के, यानी कि बच्चा गर्भाधान से लेकर, इन सभी को भी इस सारे के सारे तंत्र के साथ जोड़ा गया है। इसलिए एनसीईआरटी को कहा गया है कि वो इस आयु एज ग्रुप के बच्चों का एक, और पेरेंट्स के लिए एक मॉड्यूल तैयार करे, और उस मॉड्यूल के आधार पर एक करिकुलम आएगा, उसके बेस पर इस शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। अब एक यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव आ गया। दूसरा बदलाव आया मिडिल सेक्शन में, जिसको हमने मिडिल कहा। इस देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि बच्चे को मिडिल से पहले का एक और बदलाव मैं आपको बता देता हूँ, सारी शिक्षा मदर टंग में होगी, मातृभाषा में। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होगा। उसके पीछे एक लॉजिक है। जितने भी शिक्षाविद हैं दुनिया के, और दुनिया का एक सर्वे करके अगर हम देखेंगे, तो आज वर्ल्ड के जो टॉप 7 कंट्री हैं या 10 कंट्री हैं टॉप, चाहे वो इकोनॉमी में है, चाहे वो साइंस में है, चाहे वो रिसर्च में है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, चाहे वो देशभक्ति में है, चाहे वो देश से पले बड़े हुए देशभक्ति में है, ऐसे पहले 10 देशों की आप सूची बना लो। आप बनाइए, आप देखेंगे उन सभी 10 देशों के अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग है। यानी यदि बच्चे ने, किसी ने मौलिक विचार करना है, ओरिजिनल थॉट्स निकालने हैं, तो वो उसी भाषा में आते हैं जिस भाषा में व्यक्ति रात की नींद में स्वप्न लेता है। मुझे आप सारे यहाँ जुड़े हैं, हजारों की संख्या में आप जुड़े हैं, तो आप अगर ये बताएंगे कि आपको स्वप्न पंजाबी में आता है, हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है, यदि ये सच है कि वो पंजाबी में आता है, वो मां बोली में आता है, तो फिर ये मानकर चलिए कि पढ़ाई में बच्चे की समझ भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में होगा तभी आएगी। नहीं तो वो रटी रटाई चीजों पर नंबर ले लेगा, वो मौलिक विचारिक नहीं बन सकता। और जिस देश के नागरिक मौलिक विचारिक नहीं बन पाते हैं, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए
इस शिक्षा नीति में कहा गया है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में होगा। तो मदर टंग के अंदर, और उसके कारण, उसका एक कारण और भी है, हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई बात मैं पहले बता देता हूँ। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश ने लगभग 200 भाषाएं खो दी है, खत्म हो। यूनेस्को के डाटा के मुताबिक, यूनेस्को जो कहती है, जिसको आप ऑथेंटिक मानते होंगे, उसमें 197 लैंग्वेज लुप्त प्राय खत्म होगी। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, डियर फ्रेंड, दोस्तों जरा विचार करो, ऐसी भारत की कितनी भाषाएं हैं जिन भाषाओं में लोगों ने बहुत बड़ी रिसर्च की है, अपने अनुभव से कुछ चीजें तैयार की हैं, और अगर वो भाषा हमें नहीं आती तो हम इतने बड़े ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। वो ज्ञान बंद पड़ा है, उसको हम सीख। अब यदि चारों तरफ का ज्ञान लेना है, जैसे विवेकानंद ने कहा, विवेकानंद जी ने कहा था, हे भारत के लोगों, आप सारा दुनिया के अंदर जो नई नई बातें हैं उनको अपना लो, उनको ले लो, लेकिन याद रखो, साइंस ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, सारी दुनिया की अडॉप्ट कर लो, लेकिन याद रखो, क्या याद रखो, उसका आधार जो भारत का चिंतन है, ऋषि मुनियों का चिंतन, वो उसका आधार निकलेगा। उसको ले लो, लेकिन अपने चरित्र निर्माण के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए भारत की संस्कृति और भारत को अपना लो। आप दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति बन जाओ। इस बात को शिक्षा नीति में ध्यान रखना। दूसरी बात, इस शिक्षा नीति को आधार बनाया हुआ है पहले 2 पेजों के अंदर ही, शिक्षा का कार्य चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास है, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इन सारी बातों से बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसका कैरेक्टर बिल्ड होगा। तो यही तो शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस दृष्टि से विचार करेंगे तो फिर मातृभाषा, और जो इतनी बड़ी 200 और 197 भाषा, 220 भाषा भारत का डाटा है, लेकिन यूनेस्को ने 197, तो इसमें मातृभाषा कहा। तो ये जो मातृभाषा शिक्षा का माध्यम कहा गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, थोड़ी बात नहीं। अब दूसरी बात क्या कहेगी, स्कूल एजुकेशन को मैं 3-4, क्योंकि स्कूल एजुकेशन आधार है शिक्षा का। इंजीनियर का विद्यार्थी कैसा होगा, लॉ का विद्यार्थी कैसा होगा, बीएड का विद्यार्थी कैसा होगा, डिपेंड करेगा स्कूल का विद्यार्थी कैसा होगा। इसलिए स्कूल एक बेसिक एजुकेशन होने के नाते उसके अंदर 2-3 बातें इस शिक्षा नीति में और बहुत अच्छी है। और वह अच्छी बात है क्या है कि जब बच्चा 6ठी कक्षा में पहुंचेगा तो उस बच्चे को स्किल लेनी होगी। एक स्किल डेवलपमेंट के अंदर एक स्किल का चयन करना। कौन सी स्किल? जो उसके आसपास की ट्रेडिशनल जॉब है, जो बुजुर्गों से, कहीं कुम्हार का कार्य चलता होगा, मिट्टी के बर्तन का कार्य चलता होगा, कहीं बढ़ई का चलता होगा, कहीं इलेक्ट्रिशियन का चलता होगा, कहीं शहद निकालने का चलता होगा। ये जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन थे, इनमें से किसी एक स्किल को चुनना है। और इस शिक्षा नीति में कहा गया है 6ठी से बच्चा इस स्किल को चुनेगा, और इस स्किल को चुनने के साथ साथ में उसे 8वीं कक्षा तक ये कार्य करना होगा। और कार्य करते करते 10 दिन उसको प्रैक्टिकल इंटर्नशिप करने के लिए उस स्थान पर जाना होगा। स्कूल में नहीं आना, उसको बैग लेकर नहीं आना। तो ये एक बहुत बड़ी बात इस शिक्षा नीति के अंदर कही गई है, जो कि एक देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाने की प्रक्रिया में है। उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? हमारे हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का अर्थ है कि हाथ से काम नहीं करना, अच्छे कपड़े पहनने, ड्रेस कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना। अब मास्क आया है तो मास्क भी वही पहनना जो कमीज और सूट के साथ टैली करता है। इसमें हम अपनी शान समझते हैं। भारत का दुर्भाग्य है, लेकिन दुनिया के देशों के अंदर
18 साल से 24 वर्ष तक के बच्चों का जो डाटा बोलता है, काम करने वालों का, हाथ से काम करने वाले का, तो वह अमेरिका का 56% है। इसी उम्र के बच्चों का दक्षिणी कोरिया के अंदर 96% है और भारत 5% से भी कम। जब व्यक्ति हाथ से काम करने में शर्म महसूस करेगा, जब व्यक्ति इनोवेशन नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो नौकर कितने बन पाएंगे? आखिर मालिक बनने की प्रक्रिया में नहीं है, वो नौकर बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो नौकरी ढूंढता है। तो इस दृष्टि से इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की बात कही और ये माना है कि 2025 तक 50% लोग हाथ से काम करने वाले तैयार हो। एक बहुत बड़ा बदलाव शिक्षा 9वीं से 12वीं के अंदर इसको वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ जोड़ा है और वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर इसके अंदर एक बहुत बड़ा और काम किया है। बच्चा 9वीं में फिर एक जब वोकेशनल विषय को चुन लेगा, जब वो हायर एजुकेशन में जाएगा तो वो लिंक कर दी है आपस में स्कूल के और कॉलेज के साथ। बच्चा उस विषय को चुनकर पहले से मन बनाकर 6ठी से वो काम करता हुआ 9वीं से उसको व्यवसाय में बदलेगा और 12वीं के बाद वो उसके एक्सपर्टाइजेशन के लिए कॉलेज के अंदर एंटर कर जाएगा। इस तरह से एक बहुत अच्छे कामगारों की जो देश को जरूरत है, उनकी संख्या बढ़ेगी और 10 वर्षों के बाद और 15 वर्षों के बाद भारत एक बदलती हुई तस्वीर के अंदर नजर आ सकता है। केवल इतना नहीं किया, हम देखते हैं कि आज भी मैथमेटिक्स का रिजल्ट पूरे देश का निकाल लीजिए। नॉन मेडिकल पढ़ना है तो मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। एक स्ट्रीम के अंदर है, 11वीं के अंदर बच्चे ने सब्जेक्ट लेने हैं जो पहले हायर सेकेंडरी सिस्टम में 9वीं से हुआ करता था, तो आपको ये तो मेडिकल पढ़ना है, नॉन मेडिकल करना है, कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटी लेनी है, एग्रीकल्चर लेना है, वोकेशनल लेना है। दीज आर सम स्ट्रीम। इन्हीं के बीच में लेकिन परमात्मा ने बच्चे को गुण तो कोई और दिए थे। उसको गुण ये दिया था कि वो फिजिक्स के अंदर बड़ा अच्छा है, लेकिन उसका गला भी बड़ा अच्छा है, वो संगीत भी बड़ा अच्छा गा सकता है, तो उसको म्यूजिक नहीं मिल सकता क्योंकि उसको फिजिक्स के साथ नॉन मेडिकल पढ़ने, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही पढ़ना है। अब ये स्थिति खत्म होगी। देयर विल बी नो स्ट्रीम सिस्टम इन दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। बच्चा अपनी रुचि और अभिरुचि के लिए, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, जिसमें परमात्मा ने उसको बख्शीश दी है एक किस्म की, वह उस विषय को चुन सकता है। इसका कारण होगा जो हमारा ड्रॉप आउट था, जो अभी पिछले दिनों में 100% प्राइमरी में इनरोलमेंट हो रही थी और 12वीं तक वो 56% रह जाती है, अब वो 100% इनरोलमेंट आगे बढ़ेगी। कॉलेजेस के अंदर एक अच्छी संख्या में विद्यार्थी आएगा, नहीं तो वो शिक्षा से वंचित हो जाता था, बाहर हो जाता था। कारण ये था उसको मनपसंद चीज पढ़ने को नहीं मिल रही है और उसको फेल के नाम पर स्कूल छोड़ना होता था। इस शिक्षा नीति में इसलिए प्रत्येक बच्चे की प्रतिभा को उभारने का मंच शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है। यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक दो बातें और स्कूल शिक्षा की ओर, हम हायर एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं। पहले बच्चे का रिजल्ट एक टीचर तैयार करता था, अब ऐसा नहीं। 360 डिग्री सर्टिफिकेट जब बनेगा तो उसके अंदर बच्चा, बच्चे का क्लासमेट, टीचर और पेरेंट्स, 4 लोगों के एरियाज बांटे होंगे। वो उसके नंबर देंगे, उसके आधार पर उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। स्वाभाविक ही है, किसी बच्चे की सोशल स्किल अच्छी हो सकती है, किसी की इमोशनल स्किल अच्छी हो सकती है, किसी बच्चे की टेक्निकल स्किल अच्छी हो सकती है, किसी बच्चे के अंदर अलग अलग गुण है, तो वो घर के 6 घंटे का स्कूल कितना जान पाएगा? 40 बच्चों की क्लास में एक टीचर कितने को समझ पाता है? और भगवान बचाए भला की इस देश के ऊपर, क्योंकि ये भारत है ही परमात्मा का बनाया हुआ देश है, इस कारण से शायद उसकी कृपा इतने वर्षों में बनी रही
नहीं तो कसर कहीं छोड़ी नहीं हुई। अब आप देखिए +2 में 3 घंटे का प्रश्न पत्र या यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर 3 घंटे में एक क्वेश्चन पेपर का टुकड़ा दिया जाता है, एक आंसर शीट दी जाती है और 3 घंटे में जो उसने लिख दिया उसके आधार पर उसको योग्य और अयोग्य कहा जाता है। इज इट राइट? कभी उसका इवैल्यूएशन नहीं हो सकता। उसका इवैल्यूएशन तो, अब मैं कितने उदाहरण आपके सामने रखूं जो कॉलेज नहीं गए थे लेकिन वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी बन गए, उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च भी की, उन्होंने बहुत बड़ा व्यापार भी खड़ा किया, वो पढ़े नहीं थे। कितने दुनिया में ऐसे उदाहरण मिलेंगे। तो ये जो बच्चे को योग्य, और फिर भगवान बचाए एक लंबी लिस्ट अखबारों के अंदर अप्रैल महीने में स्कूल में और जुलाई महीने में कॉलेजेस के अंदर आना शुरू हो जाती है। इस स्कूल के कॉलेज के इतने बच्चे यूनिवर्सिटी में मेरिट में आए, इतने स्कूल में मेरिट में आए। 3 घंटे में मेरिट और डीमेरिट हम तय कर, इस सिस्टम को खत्म कर दिया। जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थी वो सारी पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी। 360 डिग्री सर्टिफिकेट के अंदर से उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगा, उसको आधार बनाकर उसका रिजल्ट। तो ये कुछ एक बुनियादी चेंजेस, बहुत बड़ा लंबा विषय है लेकिन ये बुनियादी। अब हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के अंदर आप देखेंगे तो अभी तक क्या था, ये आर्ट्स का कॉलेज है, ये साइंस का कॉलेज है, ये इंजीनियरिंग का कॉलेज है, ये सिस्टम भी खत्म। मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच आ, किसी भी कॉलेज को अब केवल एक विषय नहीं पढ़ाना होगा, मल्टी डिसिप्लिन उसके अंदर देनी होगी। अगर वो मल्टी डिसिप्लिन देता है तभी वो कॉलेज चलेगा, अन्यथा वो कॉलेज नहीं चल सकता। और ये सारा 2035 तक कवर करना है। क्या होगा, बच्चे के लिए एक एंट्रेंस होगा +2 के बाद कि वो किस जगह पर जाना चाहता है। उसके आधार पर ये जो कॉलेजेस हैं, अब ये कॉलेजेस खत्म हो जाएंगे, कोई कॉलेज नहीं रहेगा। इस तरह के 3 एरिया बना दिए, टीचिंग कॉलेज, रिसर्च कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। अब इसमें क्या किया, इसके अंदर क्या किया कि जो अभी तक कॉलेज चलते थे तो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी विल बी द अंडर ऑफ द HEIE, यानी इसके ऊपर जो सारा का सारा सिस्टम दिया गया। अब तो कॉलेज के अंदर ये सारी बातें क्या रहेंगी, किसी भी कॉलेज को समाप्त करके वो ऑटोनॉमी मिल जाएगी, वो अपना पाठ्यक्रम बना पाएगा, अपना परीक्षा का मॉड्यूल बना पाएगा, अपना इवैल्यूएशन एरिया बना पाएगा, अपने ढंग से वो काम करेगा। इसलिए अब एफिलेटेड कॉलेजेस नहीं होंगे, एफिलेटेड कॉलेज की जगह सारी यूनिवर्सिटी बन जाएगी। तो मल्टीपल डिसिप्लिन के अंदर सारी के सारी, और मल्टीपल डिसिप्लिन में उसमें एक एक्रीडिटेशन के लिए कमेटी बनाई गई है एक उसके अंदर। तो उस कमेटी के द्वारा ये तय किया जाएगा कि इसकी गुणवत्ता कितनी है, तो उसको HECI का नाम दिया गया है। HECI की स्थापना होगी जिसके अंदर HNRC, NAC, HE, GC, GEC यानी कि सामान्य शिक्षा परिषद, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद और राष्ट्रीय प्रत्यानयन परिषद, ऐसे नाम के होंगे जो उनका एक्रेडिटेशन करेगी। और यदि वो 3000 प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी तो दे विल बी मर्ज विद अनदर कॉलेज, अनदर यूनिवर्सिटी, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। तो इसलिए इसमें क्वालिटी एजुकेशन भी बढ़ेगी, नहीं तो वो फिर वो कॉलेज मर्ज दूसरे के साथ हो जाएगा, वो उसके अंदर नहीं रह पाएगा। ये भी इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज है। तो इसके अंदर ये एक बड़ी बड़ी चेंज है। और कॉलेजेस के अंदर जो दूसरी बड़ी चेंज है, उसको प्रत्येक कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर फिर स्कूल को भी जोड़ा दी गया है, अटैच किया गया है, लिंक कर दिया, यानी कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में भी जाएगा ताकि स्कूल की क्वालिटी और हायर क्वालिटी के अंदर एक बहुत बड़ा गैप ना आए।
बच्चा उस दिशा में आगे बढ़े। और जब ऐसा होगा तो हम देखेंगे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा काम किया गया है। वो काम क्या किया गया है? एक यूनिवर्सिटी के अंदर, हर स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसका काम ट्रांसलेशन का होगा। यानी कि मलयालम भाषा का जो ज्ञान है उसको पंजाबी में ट्रांसलेट किया जाएगा ताकि पंजाब के बच्चे वहां के ज्ञान को भी समझ सकें। ये भी उनका काम होगा। और इस तरह से अलग 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 सिस्टम। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात आ जाएगी वो है मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टी एंड एंट्री ऑप्शन। मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शन जो आ जाएगी। पहले क्या था, जब एक बार बच्चा एडमिशन ले लेता था, माना उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, अब एक वर्ष उसने लगाया, घर की परिस्थिति को काम ऐसा बन गया, रोजगार के लिए उसको जाना पड़ा, तो उसको कॉलेज छोड़ना पड़ता था, उसका एक वर्ष बेकार हो गया। किसी को 2 वर्ष के बाद छोड़ना पड़ गया तो उसके 2 वर्ष बेकार हो गया। अब ऐसा नहीं। जो बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री के अंदर ये सबसे बड़ी बात क्या करना पड़ेगी, उसको यह करना पड़ेगा कि जब वो छोड़कर चला जाएगा तो 1 साल उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो वैलिड होगा। अगर वो डिग्री नहीं कर पा रहा है, 2 वर्षों के बाद छोड़कर चलेगा तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा और उसका मन करेगा 3 वर्षों के बाद में तो उसको फिर एंटर किया जाएगा। वो किसी और कॉलेज में जाएगा, देयर विल बी द क्रेडिट सिस्टम एंड क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर उसके दूसरे कॉलेज में हो जाएंगे और उसकी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी, बेकार नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव शिक्षा में। ऐसे ढंग से बहुत सारे लेवल के ऊपर तो एक स्ट्रीम वाले संस्थान अब मल्टी स्ट्रीम वाले संस्थान बन जाएंगे और 15 वर्षों के बीच में यानी कि 2035 जैसे मैंने पहले कहा कोई कॉलेज नहीं होगा, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज। अब इस देश के अंदर पहले भी 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, मल्टी डिसिप्लिन इस देश में रही है बहुत पहले। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में यही बातें थी और उसके नाम पर दुनिया भर के विद्यार्थी भारत में पढ़ना आते थे। उस सारे सिस्टम को दोबारा खड़ा करने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए मल्टी डिसिप्लिन को लिए बहुत बड़ी बात दी गई। इसी तरह से फिर इसके अंदर एक और काम किया गया है, वो है बीएड की, वो है टीचर बनने के। इस सारी शिक्षा नीति के अंदर कहा गया है कि इस देश का सबसे स्वाभिमानी, सबसे बड़ा, सबसे आदरणीय, सबसे सम्मानीय अगर कोई व्यक्ति है तो वो अध्यापक होगा। उस अध्यापक की डिग्निटी को बहाल किया जाएगा। इसलिए टीचर, गेस्ट फैकल्टी वाला टीचर, टेम्परेरी टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर ऐसा नहीं होगा। सारी नियुक्तियां एक समान होगी और कहीं भी कोई पोस्ट खाली नहीं रहेगी। ऐसा इस पर विचार किया। ये बहुत बड़ा निर्णय है। और इसके लिए फिर उसने ग्रेजुएशन के अंदर भी, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी बच्चा स्पोर्ट्स ले सकता है, इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है, फिजिक्स पढ़ सकता है, जो जो उसको लगता है अपने शौक के विषय वो पढ़ सकता है। यानी कि लिबरल आर्ट पढ़ सकता है, साहित्य पढ़ सकता है, दर्शन फिलॉसफी पढ़ सकता है, डांस पढ़ सकता है। तो इस ढंग से मल्टीपल डिसिप्लिन की बात हायर एजुकेशन के अंदर। एक हायर एजुकेशन के अंदर जो बदलाव है, जो मैं टीचर की बात कर रहा था, अब टीचर बड़ा सम्मानीय व्यक्ति होगा, उसकी डिग्री, लेकिन उसके अंदर एक और बात कही गई है, योग्य व्यक्ति ही टीचर बने, जैसा कैसा व्यक्ति टीचर ना बने। आज देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि जिसको कुछ नहीं मिलता वो टीचिंग में जाता है, सैलरी बड़ी डिमांड करता है, करवा कुछ नहीं सकता। ये बड़ी बदकिस्मती है देश की, क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट नहीं था, उसका शौक नहीं था, लेकिन वो बाई चांस एक्सीडेंटली वो टीचर बन गया। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है योग्य व्यक्तियों को चुना जाएगा, उनको स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वो टीचर बने। और सबसे योग्य व्यक्ति टीचिंग में आएगा तो वो कई वैज्ञानिक, कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, कई तरह के लोग जो देश को जरूरत है उसको तैयार करें। ये इस शिक्षा नीति के अंदर
एक बदलाव ये है। इसलिए बीएड को भी 4 वर्ष में बना दिया, यानी कि मल्टीपल डिसिप्लिनरी, यानी वो शिक्षा का जो बीएड का सिलेबस होगा, इसलिए बीएड को 4 वर्ष कर दिया जाएगा। धीरे धीरे अभी 2 वर्ष की और 1 वर्ष की रहेगी, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगी। एमफिल खत्म हो गई, सीधे पीएचडी के लिए रिसर्च में चले जाए। ये बीच की क्लॉज जो एमफिल करके आगे पढ़ना था, वह भी समाप्त होगी। तो इस तरह से ये सारी बातों को करने के लिए, इसके लिए मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री के लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक तैयार किया जाएगा, और उस बैंक के आधार पर वो ट्रांसफर भी किए जाएंगे, वो डिजिटल रूप से होगा, तो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा उसको, इसलिए इसके अंदर अगर वो ग्रेजुएशन के बाद करता करता 6 साल, तो उसको रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। और इस तरह से रिसर्च यूनिवर्सिटी अलग बनेगी। हर जिले के अंदर एक अच्छी यूनिवर्सिटी दी जाएगी, ताकि बच्चे को बहुत दूर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, वो वही पढ़े। तो ये सारा, और इस सारे को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, इसको केवल व्यवसाय ना बना लिया जाए, उस पर भी रोक लगाई है। लेकिन इस शिक्षा नीति ने जहां व्यवसाय को रोकने की बात कही है, वही कहा है सरकारी के साथ साथ निजी संस्थानों को बराबर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरह से एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी सिस्टम है। एक शब्द चलता है वहां पर, टाइट बट लाइट सिस्टम, टाइट बट लाइट सिस्टम, इससे उसका कंट्रोल किया जाएगा। इसके तो इसका ये सारी की सारी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, तो बहुत सारी ऐसी सिस्टम सारे के सारे शिक्षा के अंदर जोड़े गए हैं। तो HEI, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो हर जिले में दिया जाएगा, उसके साथ में जो विचार किया गया है एक और है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। भारत कृषि प्रधान देश। अब कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उसमें क्या है, तो उसमें आप हैरान होंगे, आप उसको देखेंगे। अभी तक जो देश की वर्तमान स्थिति है, आप में से ये सारे डाटा को कलेक्ट करते होंगे, पूरे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, दैट इज 9%। 9% अच्छी है, 9% एग्रीकल्चर के लिए इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जो विडंबना है आज, जो बड़ा विचारणीय है, उनकी एनरोलमेंट लेस देन 1%। और देश कृषि प्रधान देश है। अब कृषि कैसी चाहिए, कृषि की मार्केटिंग कैसी चाहिए, एग्रीकल्चर को, किसानों को क्या क्या सुविधाएं मिलने चाहिए, उनकी आमदन कैसी बढ़नी चाहिए, इस पर विचार करने के लिए एग्रीकल्चर की पढ़ाई पर बढ़ावा देना होगा। तो इस दृष्टि से भारत ने ये एक बहुत बड़ी जो राष्ट्रीय शिक्षा के नीति के में सारे पक्षों को कवर किया है, वहां एक और पक्ष हुआ है जो पंजाब के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज बच्चे पढ़ाई के बाद हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए विदेश जाना पसंद करेंगे भी, उनको वहां सुविधा मिलती होगी, उनका वहां सिस्टम ठीक मिलता होगा, तो वो करेंगे भी। तो अभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर ऐसा ओपन कर दिया, भारत की यूनिवर्सिटी विदेशों में जा सकती है और विदेशों की यूनिवर्सिटी भारत आ सकती है। यानी कि भारत में बहुत बड़ा खर्च करके विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो यूनिवर्सिटी भारत में आ जाएगी और भारत की यूनिवर्सिटी विदेश में चली जाएगी। और इसके लिए विदेशी विद्यार्थियों को अट्रैक्ट करने के लिए उनके लिए कुछ स्थान तय किए जाएंगे, फॉरेन स्टूडेंट्स की अट्रैक्शन के लिए सेंटर बनाए जाएंगे, और इस तरह से इस सिस्टम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये हायर एजुकेशन के अंदर बहुत बड़े बदलाव। ये मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने रखी। अब एक शब्द, एक वाक्य कहकर मैं लगभग इस विषय को समेटता हूँ। नर्सरी क्लास में जब बच्चा दाखिल होगा, तो वहां एक शब्द आया है, प्ले, एक्टिविटीज, म्यूजिक, डांस, इसके आधार पर उसको पढ़ाना है। साथ में बुढ़ा है सर्च बेस्ड शिक्षण, सर्च बेस्ड लर्निंग,
और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कहा है, ग्रेजुएशन में भी कहा है, और रिसर्च में जो रिसर्च है तो उसको इंटर्नशिप भी उसी प्लेस पर करनी होगी, काम करने का उसको मौका ही वही मिलेगा ऐसा करने के लिए। और इसके लिए रिसर्च और पर इन्वेस्टमेंट पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है। अभी तक जो रिसर्च के लिए काम होता है, अगर दुनिया का डेटा आप देखोगे, अमेरिका में टोटल जीडीपी का 2.8% इस काम पर लगाया, इजराइल के अंदर 4.3% रिसर्च और पर इन्वेस्टमेंट, साउथ कोरिया के अंदर 4.2% है। और डू यू नो व्हाट अबाउट आवर कंट्री? हमारे देश के अंदर 0.69%, 1% भी नहीं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा, यानी कि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ में एक बात जोड़ी है, केवल और केवल शिक्षा स्कूलों और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के हाथों में नहीं होगी, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा और समाज के सहयोग और सहायता से कम्युनिटी को बीच में शामिल किया जाएगा। इस तरह क्या व्यवस्था की गई है, ये कुछ एक बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। तीनों प्रोफेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के अंदर मोटी मोटी बातों को रखा। ये डिटेल डॉक्यूमेंट है, बोलने के लिए 3 दिन भी लगातार इस पर बोला जा सकता है, क्योंकि इस शिक्षा नीति के अंदर जो एक बड़ी विशेषता है, जो मैं भी आज बोलने का दम भर रहा हूँ और विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ, तो मुझे भी भारत के 21 प्रदेशों में जाने का अवसर मिला, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जाने का अवसर मिला, बहुत सारे शिक्षाविदों के बीच में जाने, यानी इस शिक्षा नीति को बनाने वाले केवल दिल्ली में बैठे हुए बंद कमरों वाले केवल सोचने वाले लोग नहीं हैं। इस शिक्षा नीति की जो विशेषता है वो बहुत बड़े, लाखों करोड़ों सुझावों, बच्चों से सुझाव मांगेंगे, पेरेंट्स से सुझाव मांगे। मैं 2015 की बात याद करा रहा हूँ, 5 वर्ष पहले की। को या से सुझाव मांगेंगे, टीचर से सुझाव मांगेंगे, एजुकेशन से जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगेंगे, और ऐसे सारे लोगों के सुझावों का संकलन करके जो फीडबैक आई, उसके आधार पर ये शिक्षा नीति बनी है। केवल इतना नहीं, भारत सरकार ने 11 मेंबर की कमेटी बनाई, हर स्टेट की 11 मेंबर की कमेटी बनी, हर जिले की 11 मेंबर की कमेटी बनी, हर ब्लॉक की 11 मेंबर की कमेटी बनी, हर पंचायत की 11 मेंबर की कमेटी बनी। उनके सुझावों के द्वारा यह शिक्षा नीति आई है, जो जमीनी सोच को आधार बनाकर बनी है। प्रश्न खड़ा हो गया, नीति बन गई, 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की अप्रूवल के बाद हमारे पास आ गई। अब इसका क्या हो? राधा कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट भी बड़ी अच्छी थी, 1952 की रिपोर्ट भी बड़ी अच्छी थी, 1964 और 6 की रिपोर्ट भी बड़ी अच्छी थी, 1986 की अच्छी थी, 1992 यशपाल कमीशन की रिपोर्ट भी बड़ी अच्छी थी। तो फिर गलत क्या था? फिर भला क्यों नहीं हुआ? सभी कुछ ठीक क्यों नहीं हुआ अगर अच्छी थी? ये प्रश्न मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूं। इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार। प्रश्न था जो कुठारी कमीशन ने कहा। कुठारी कमीशन ने 1964 में अपनी रिपोर्ट के फर्स्ट पेज के ऊपर जो लिखा था, डायनेस्टी ऑफ इंडिया इज शेपिंग इन द क्लास। भारत का भाग्य कक्षा कक्ष में गढ़ा जा रहा है, और उस भाग्य को गढ़ने वाले 2 लोग बैठते हैं क्लासरूम में, एक बच्चा और टीचर। इन दोनों के साथ में संचालक और अभिभावक, इन 4 एजेंसियों को भी जोड़ दें, और इस शिक्षा नीति की भावनाओं को समझते हुए आज से ही काम करना शुरू कर देंगे, तो यह देश बहुत जल्दी एक स्वर्णमयी अवसर, और हम सब लोग अपनी आंखों के सामने दुनिया का एक बहुत शक्तिशाली देश, भारत का पहली और दूसरी ताकत, दुनिया का पहली और दूसरी ताकत का देश अपने सामने देख सकेंगे। इस निवेदन के साथ इसको समझने का प्रयास करें, इसके कुछ पार्ट्स बांट लें, उन पार्ट्स पर चर्चा हो, फिर हम अपने अपने संस्थानों में कैसे लागू करें और कैसे पेरेंट्स को, बच्चों को, अध्यापकों को उस पर ट्रेन करते हैं,
और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत पड़ेगी टीचर ओरिएंटेशन, अध्यापकों की ट्रेनिंग। इस सारी ट्रेनिंग को लेकर हम आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर राघव जी का, मोहित जी का, जिन्होंने मुझे आपके सामने आने का अवसर प्रदान किया और इतने बहुत बढ़िया विषय पर जिसकी आज दुनिया को जरूरत है। भारत को नहीं, मैं दुनिया शब्द इसलिए बोलता हूँ, यदि दुनिया को सुखी रहना है, यदि दुनिया को शांति पूर्वक रहना है, यदि दुनिया को बड़े इत्मीनान से रहना है, तो फिर भारत की शिक्षा ही उनका भला कर सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, तेरे भाणे सर्वदा भला। ये जो भारत का विचार है, कल ही हमने गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई है। गुरु नानक देव जी का प्रकट उत्सव बड़े उत्साह से मनाया। जो उनकी शिक्षाएं थी, जो उनकी उदासियां थी, उन सब का अगर वर्णन देखेंगे तो वो ही शिक्षा भारत को सुखी बना सकेगी। आओ इस पर विचार करें और आने वाले समय में, और इसके लिए मेरे जैसे व्यक्ति की अगर आपको लगता है कहीं भी सेवा की जरूरत हो, तो मैं आपके सामने उसी समय उपस्थित होऊंगा। आप इस पर विचार करें, आप इसकी समितियां बनाएं, इसके अलग अलग खंडों पर चर्चा करें, वर्कशॉप करें। ऐसा करते हुए अप्रैल मई तक हम आगे बढ़े और पहला वर्ष फाउंडेशन स्टेज का स्कूल से शुरू होगा और 2025 तक हमने इसको ऊपरी स्तर पर ले जाना है। इसलिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जरूरत पड़ेगी एक बदलाव के लिए। आओ इस बदलाव के साथ भारत में भी एक परिवर्तन देखें और हमारी आने वाली पीढ़ियां उस सुख को अनुभव कर सकें। इस दृष्टि से हम भी परमात्मा का शुक्रगुजार समझेंगे कि भगवान ने हमें अवसर दिया था ऐसे शुभ काम करने के लिए। तो गोल्डन ग्रुप ऑफ एजुकेशन और उसकी सारी टीम को, सारे परिवार को मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने मुझे सुना है, सुना है इतनी देर से बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। Thank you so much, sir, for your valuable and highly informative thoughts. As you have covered all the parameters regarding the education, starting from schools and thereby leading to the professional institutions and campuses. Now, I would like to request our worthy chairman, Dr. Mohit Mahajanji, to present the vote of thanks to our respective spokesperson for today's webinar. Dr. Mohit Mahajanji. नमस्कार देवराज जी। जी नमस्कार, नमस्कार मोहित जी। नमस्कार जी। परम आदरणीय देशराज शर्मा जी, नेशनल कन्वीनर शिक्षा संस्थान न्यास, आज हमारे इंस्टीट्यूशंस का आज श्री देशराज शर्मा जी के उच्च विचार भारतीय शिक्षा नीति जो हम अडॉप्ट की है या करने जा रहे हैं उसके ऊपर सुनने को मिले हैं। हमारा पहले भी सौभाग्य रहा है 15-16 के अंदर जब देशराज जी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आए थे और वहाँ पे 2-3 बार अलग अलग विषयों पर सेमिनार भी लगाए। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाया और आज भी टीचर्स देशराज जी को याद करते हैं और कईयों ने तो मेरे को पूछा भी है कि दोबारा वो वाला सेमिनार दोबारा से कब से लगेगा। तो मैं देशराज से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जब भी वो समय निकालें गुरदासपुर में पधारें और वहाँ पर हम एक कोरोना जैसे ही ख़त्म होता है तो वो सेमिनार करवाना चाहेंगे ताकि लोग आपको फिजिकली आकर वहाँ पर सुन सकें और उसमें सबका भला हो सके। आज के जो सेमिनार में आपने बातें बताई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि जितने भी टीचर्स चाहे वो बीएड के स्टूडेंट्स थे जहाँ टीचर्स थे, जहाँ हमारे श्री नंगली एकेडमिक स्कूल के टीचर्स सुन रहे थे, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के, जहाँ इधर गोल्डन स्कूल के, वो सारे अपने पॉइंट्स नोट करें। मैं देशराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वेबिनार और सबके लिए लगाया जाए ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका कैसे होना है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल के अंदर इन सब स्टूडेंट्स को और टीचर्स को बताया जाए ताकि यही मैसेज ये जो हमारे टीचर्स हैं ये सारे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। तो मुझे खुशी होगी कि यदि देशराज जी, क्योंकि इनका बहुत ही बिजी शेड्यूल है
सारे देश में घूमते रहते हैं और बड़ी मुश्किल से आज का समय आज हमें प्राप्त हुआ था। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा एक समय दें हमें, जिससे हमारा सेकंड पार्ट जो है वो भी कवर हो सके और सभी गुरदासपुर के जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें और इस मैसेज को बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स तक भी पहुँचाने की कृपा करें। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए देशराज जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस विनती के साथ कि वो जल्द ही इसी वीक के अंदर जहाँ जितनी जल्दी हो सके हमको अपना दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अपना मार्गदर्शन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now, I would like to request all the participants who are there in the webinar, if anybody is having question or query, he or she can either raise the hand or put their query or respective questions in the chat box. अगर किसी भी participants का कोई भी question है, तो वो हमारे respective spokesperson से पूछ सकते हैं, या अपना hand raise कर दीजिए chats में, या अपना directly message जो है उसको chats में डाल दीजिए. If anybody is having any query, and after that we will compile the session. अभी किसी की कोई क्वेरी है, then he or she can ask the question. जी। श्री देशराज हाँ, जी सर, मैंने पढ़ लिया जी, मैंने सर, पढ़ लिया जी सर। चैट में, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है। जी सर। सेकंड भी है, अगर लगातार रुक कर देंगे या आप नोट कर लें इसको, मैं साथ में उत्तर दे देता हूँ। जो पहले मातृभाषा की बात आई है, मातृभाषा के अंदर एक बात तो आप सबको समझनी है कि हमने कुछ पिछले वर्षों से एक भ्रम जाल में फंस गए कि जो इंग्लिश अच्छी जानता है वो अच्छा विद्वान व्यक्ति है, और इस भ्रम ने हमारे टैलेंट को दबा दिया। कहीं ना कहीं टैलेंट होने के बावजूद भी भाषा के बोझ में दब गया। उसके दो कारण हैं। जो वैज्ञानिकता है भाषा की, वह यह है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का जो दूध लेता है, उस दूध के साथ में उसके कुछ गुण आते हैं। एक दूसरा, उस गुण के आधार पर उसके फिर विचार बनते हैं। उन विचारों की प्रकटीकरण वो फिर भाषा के माध्यम से करता है। अब ये जो एक प्रोसेस है सीखने का, जब वो उस पर एक थोपी हुई भाषा जो लिमिटेड वर्ड के अंदर आएगी, जो नेचुरल नहीं होगी, तो वो सीखने से वंचित होता है। दूसरी बात, मैं भाषा से भी नीचे जा रहा हूं, जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो है बोली। अब गुरदासपुर के अंदर जो बोली है, अब उस बोली के आधार पर जब बच्चे को समझाया जाएगा, तो भाषा तो सभी सीखनी चाहिए। अभी मैंने बीच में छोड़ दिया, मैं डिटेल में नहीं गया। अब 9th से फॉरेन लैंग्वेज इसके अंदर प्रोविजन है कि एक विदेशों की भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी 9वीं कक्षा के बाद। तो भाषा सीखना और भाषा पर कमांड करना। दूसरी बात, एक वैज्ञानिकता है जिसको भाषा के में से जो भाषा के लोग हैं और भाषा की वैज्ञानिकता को जानते हैं, वह आपको अच्छी तरह से बता सकेंगे। जिसको अपनी भाषा पर, अपनी बोली पर कमांड होती है, वो बहुत जल्दी दूसरी भाषाओं को भी बहुत अच्छा सीख लेता है। भाषा सीखना और समझने के लिए भाषा का प्रयोग करना दोनों अलग बातें हैं। जब हम मीडियम और इंग्लिश पढ़ना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बोलनी चाहिए। लेकिन जब हम समझने के लिए प्राइमरी एजुकेशन के अंदर इंग्लिश का सहारा लेंगे, तो क्रैमर हम ज्यादा बनते हैं, क्रैमिंग की ओर बढ़ते हैं, उसको सीख नहीं पाते। तो इस कारण से, और दुनिया के अंदर आप जापान को देख लो, आप इजराइल को देख लो, आप रूस को देख लो, आप चीन को देख लो, ये सारे के सारे अपनी मातृभाषाओं के अंदर देश बढ़ाने वाले। फ्रांस को देख लो। ऐसे कुल मिलाकर आप देशों को देखेंगे और इन सारी बातों को समझने का कोशिश करें, तो दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो किसी विदेशी भाषा में बच्चों को पढ़ाता है। केवल अंग्रेजों के समय जो गुलाम देश रहे हैं, जो उनके आजादी, लोगों की आजादी को छीनकर अंग्रेजों ने राज्य किया और बाद में आजाद हुए, उन लोगों की मानसिकता ही गुलाम मानसिकता रही है।
धीरे धीरे देश इस गुलामी से बाहर आ रहा है। इसलिए ये भाषा का महत्व है। भाषा स्व का अभिमान प्रकट करती है, स्वाभिमान खड़ा करती है। और किसी भी देश के अंदर कोई व्यक्ति जाता है तो अगर अपनी भाषा में बात करता है तो उसका स्वाभिमान और बढ़ता है। और भारत का जो दृश्य बनता जा रहा है, अमेरिका संस्कृत पढ़ा रहा है, इंग्लैंड में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, उनकी मजबूरी बन गई है भारत की भाषाओं को पढ़ाने की, क्योंकि भारत जितनी जल्दी आगे बढ़ रहा है तो वो तभी भारत के टैलेंट का उपयोग कर सकेंगे जब वो वहां भारत की भाषा को, दूसरा उनको एक डर पैदा हो गया कि भारत के लोग हमें भी कैप्चर कर लेंगे, तो अपने ही लोगों को वो भाषाएं सिखाकर उसके योग्य बनाने का प्रयास कर एक बात। तो इस तरह से भाषा का महत्व और बोलियों का बहुत बड़ा महत्व है। अब इस एजुकेशन पॉलिसी में जो टीचर की अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया बना, उसके अंदर जो टीचर की ट्रांसफर नहीं होगी, ट्रांसफर पॉलिसी को खत्म किया जा रहा है। अब इस टीचर अपॉइंटमेंट के अंदर जिसको वो बोली आती है, जिस एरिया में वो है, उसको प्रेफरेंस दिए जाएंगे, उसको नंबर दिए जाएंगे उस बोली, और उस बोली के आधार पर उसको नियुक्ति में प्रायोरिटी मिलेगी, ताकि बच्चे को उस भाषा की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, पंजाबी की, पंजाबी से नीचे में बोली की बात कर रहा हूँ, तो उसको वो सिखाएंगे। ये तो भाषा की इंपॉर्टेंस है। दूसरा प्रश्न मेरी चैट में जो साथ ही आ गया था, तो उसके अंदर आया था कि ये स्किल के बारे में उसका क्या है। तो ये 6th क्लास से स्किल की बात आई है। हम देखते हैं कि बहुत सारे दुनिया के देशों में, मैं तो विदेश नहीं गया हूँ, लेकिन जो लोग विदेशों में जाकर आते हैं, तो विदेशों में जाकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने हाथ से काम करना पड़ता है। वहां वो काम कर लेते हैं। पढ़ाई करने के लिए बच्चा जाता है, वहां टॉयलेट साफ करने के लिए पैसे कमा लेता है पढ़ता पढ़ता, लेकिन जब उसके अंदर हुनर नहीं आएगा, माने एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए, एक प्लम्बर चाहिए, छोटे छोटे काम चाहिए। अब इन कामों के लिए सभी लोगों ने तो डॉक्टरेट नहीं करनी है, तो वो अकेला ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, 4 MA करके क्या करेगा वो उसके किस काम का आएंगे। तो इस तरह से स्किल को इस से, ताकि 50% से ज्यादा, यानी कि 2025 तक 50% लोग इस काम काज में आ जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, अपना व्यवसाय चलेगा। तो इसलिए स्किल ओरिएंटेड ये कंपलसरी होगा। जो मेरे पास क्वेश्चन आया था, 6th में कंपलसरी है, 9th में वोकेशनल सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है, इट विल बी कंपलसरी इन द होल कंट्री। तो इस तरह से जहां तक अगला क्वेश्चन मेरे सामने आया है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट का और यूनिवर्सिटी का, तो देयर विल बी द यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ द एजुकेशन थ्रू आउट ऑफ द कंट्री। उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी क्या होगी, क्योंकि वो करिकुलम की गाइडलाइन एक होंगी और उस गाइडलाइन के आधार पर उस इंस्टीट्यूशन को एजुकेशन देनी होगी। अब ये जो ऑटोनॉमी आज है, इसमें थोड़ा सा फर्क है ऑटोनॉमी का। इस ऑटोनॉमी के साथ उन्हें 3000 बच्चों की क्वालिटी देनी होगी। यदि वो 3000 बच्चों की क्वालिटी देने में ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन असफल रहते हैं, उसको बंद होना पड़ेगा, उसको मर्ज होना पड़ेगा दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ। तो इससे क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ेगी। हाँ, एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि पश्चिम संस्कृतियों को अपनाकर हम अपने देश की सफलता में काम कर रहे हैं। नहीं, किसी भी पश्चिम हो या कोई यूरोप हो या कोई अन्य देश हो, उसकी संस्कृति में यदि अच्छी चीजें हैं, अगर हमने उनको अपना लिया, ये भारत की संस्कृति की सर्वमान्यता है। हमने कभी अपनी संस्कृति को किसी, अभी आपको मैं कोरोना की बात बताता हूँ। कोरोना काल के अंदर हमारे यहाँ संस्कृति थी, जूते बाहर खोलो, हाथ धोकर ही रहो, स्वच्छ कपड़े पहनो और छोटे छोटे नमस्ते करो, पश्चिम की तरह शेक हैंड मत करो, किस मत करो। अब कोरोना ने हमें क्या सिखाया? आप किसी को किस करके देख लेते, आप शेक हैंड कर लेते, क्या स्थिति होती? दूर से नमस्ते करना। तो भारत की संस्कृति को आज दुनिया ने अपनाना शुरू किया सफलता के लिए। तो इसलिए भारत की संस्कृति के अंदर
कोई थोपने वाली बात नहीं है, सहजता है। अब हमारे यहाँ प्रदूषण की समस्या है। हमारी संस्कृति में तो वृक्षों की पूजा की जाती थी। तो वृक्षों की पूजा करने का अर्थ कोई उसके अंदर कुछ मिल जाना उसको, लेकिन वो ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए उसको पूजा से जोड़ा। ये हमारी संस्कृति है, तो हमारे यहाँ प्रदूषण होना नहीं चाहिए था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए अपने देश पश्चिम की संस्कृति को अपनाकर हम पूरा मॉडल अडॉप्ट कर लेंगे तो सफल कभी नहीं हो पाएंगे। जैसे आपके अपने परिवार में आपकी अपनी क्षमता है, आप दूसरे की नकल कोशिश शुरू करोगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। धीरे जरना जरा, मेरे पास क्वेश्चन बहुत है। इंस्टीट्यूशन, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि परीक्षाएं कब ली जाती हैं। तो जापान का उदाहरण मेरे सामने लिखा हुआ है कि 5वीं की कक्षा के लिए जापान में भारत के अंदर परीक्षाएं समाप्त कर दी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केवल 2 परीक्षाएं रखी, एक 10वीं की और एक 12वीं। नीचे कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 में परीक्षा नहीं है, वो एक लेवल को स्क्रीन करने के लिए कहा गया है। परीक्षा केवल 2 ही रखी गई है, ये बिल्कुल सही है। 5वीं की परीक्षा में, बल्कि 12वीं की परीक्षा में भी बच्चे की योग्यता का पता नहीं लग सकता है। तो वहां पर जो पाठ्यक्रम बुनियादी सिखाया जाता है, आज यहाँ पर भी वो कथा, कहानियां, गतिविधियों, और उसको 3 नाम मैंने छोड़ दिया आपको इस शिक्षा नीति के अंदर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मल्टीपल डिसिप्लिन अप्रोच, ये सारी बातों, आर्ट इंटीग्रेशन, ये सारी वही बातें हैं जो बुनियादी सीखने पर बल देती हैं, और उसमें नैतिकता है, मूल्य है, शिष्टाचार है, लाइफ स्किल्स है, ये स्वभावक आ जाती है। तो ये क्वेश्चन था एक मेरे सामने। और तो इस तरह से एमफिल नॉट वैल्यूएबल फॉर, ठीक है, एमफिल तो खत्म कर दी गई है। आपका एक प्रश्न है, तो इसके अंदर एमफिल को वैसे ही खत्म कर दिया है। और एक इंडस्ट्री के बारे में जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट जो है, अब इसके अंदर क्या है कि 6ठी कक्षा से ही, जैसे मैंने कहा, ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को कि इंटर्नशिप के लिए, सीखने के लिए वहां जाना होगा बच्चे को, इसलिए प्रत्येक इंस्टीट्यूट को भी उसके अंदर सिखाना आवश्यक होगा। उस परिसर के अंदर ही सारी सुविधाएं होनी होगी। अगर नहीं है तो उसको एक प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक यूनिवर्सिटी जो है वो हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए दी जाएगी 2035 तक। तो इस तरह का वर्णन है, तो यहाँ ये सारी बातें पूरी हो जाएंगी। ठीक, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, मैं चैट में तो यही पढ़ पा रहा हूँ। जी सर। गुड आफ्टरनून सर। सर एक तो मैं बड़ा ही आपका इंफॉर्मेटिव सेशन था, वो इसलिए कि जैसे मैं अपने गोल्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्व कर रहा हूँ, तो आपने जिस टॉपिक के ऊपर बात करी है ना कि स्कूल और जो कैंपसेस हैं, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। उसका हमें सबसे डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमारे पास स्टूडेंट आता है ग्रेजुएशन के लिए, हमारे पास एक लंबा चौड़ा सिलेबस होता है यूनिवर्सिटी का जो हमें उसे पढ़ाना होता है। वो बच्चा बेसिक इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज स्किल्स उसको लिखने तक नहीं आता, तो हमें, हमारे लिए दिक्कत होती है कि हम इसको स्टार्टिंग से वो पढ़ाएं जो उसको स्कूल से पढ़ना चाहिए था, या हम उसको वो पढ़ाएं जो हमें सिलेबस दिया गया है, जो हमने उसको कवर करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर ये जो आपने इस गैप के ऊपर बात बहुत कम होती है। सिर्फ ये होता है कि इतनी सीजीपी लानी है, इतने परसेंटेज लानी है, लेकिन वो आएगी कैसे, उसके लिए एक प्रोफेशनल जो टीचर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ एक टीचर्स होते हैं जो इस चीज को बाईपास कर देते हैं कि हमें क्या पढ़ी है, हमें जो सिलेबस दिया गया है हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, हमें क्या लेना देना है कि अगर इसको लिखने आता है या नहीं आता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो शुरुआत से उसको स्टार्टिंग से करने, जो शुरुआत से लग जाते हैं, फिर उनका सिलेबस रह जाता है इस चीज के बीच में। तो दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ योर सेशन, and along with that I had attended another workshop at this campus from your side. आपने एक बार वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर भी वर्कशॉप लगाई थी 2015 में,
तो टुडे जैसे वो सेशन वैल्यूएबल था, आज भी मैंने उसके पॉइंट नोट्स कर रखे हैं. Today's webinar was also equally informative and special for all of us, sir. Thank you so much. Thank you, so kind of. Thank you, sir. Sir, I think the query session has been over. Nobody is raising hands or chat session. So thank you so much for your webinar, sir. And we shall hope for another numerous number of webinars from your side in nearby future, as Dr. Mohit Mahajan has requested from your side, sir. Thank you so much for your valuable time, sir. I will be available as per your requirement. And Thank you so much, sir. So nice of you. Okay, sir, we are ending the session now. Thank you everyone for being so nice and have maintaining the patience for this webinar and decorum of the session. Thank you so much.